समझिए कि जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, जो आप whoever is your examiner, he has a lot of copies to check that day. हो सकता है he has a good bundle of 15-20 copies to check that day. For him, your answer copy is nothing than just a bundle of papers, 50 papers, just that. But for us, our answer writing copy is every second of hard work that we have put in at our home, wherever we are studying. So उस एक पेपर को, एक A4 साइज शीट को आपको डिफरेंशिएट करना है कि हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, कैसे आप हाफ और 1 मार्क एक्स्ट्रा स्टील कर सकते हो एग्जामिनर से एक पर्टिकुलर आंसर के लिए. जिसको आंसर राइटिंग एक बार समझ में आ गई, द वे यू हैव टू राइट आंसर्स, द वे व्हाट यूपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू, देन उसके नोट्स अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाते हैं. समझ में आ जाता है कि यार कंटेंट किस टाइप का चाहिए, आप एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ते फिर. While writing an answer, we have a tendency that we study so much, we have lot of content to write. Then what we used to do, that put everything that we know. Just try to read a question in between. Just see that whatever I am writing, is it linked to the question or not? Whether the examiner wants to know it or not. Only then write it. Before you give the actual exam, you also have to put yourself through the part of attempting the paper, whether it is preliminary exam or mains examination. Always practice, like I am saying daily answer writing मैंने बताया. So practice is the key, and whenever you are practicing, practice it on UPSC style paper. How I used to practice, I used to try and do a question full length in the last 1 month, actually a full length paper. And whether it's comprehensive, whether it's thematic, I think answer writing on a daily basis, if you don't do 3, do some amount, is a non-negotiable. That is the only thing that's going to keep you in practice. It's the only thing that's going to prepare you for the randomness that you might feel at that point of time. Not that the mains are very structured, but there will be invariably a question, you're like, how do I answer it? If you have the flow and the practice, you'll be able to, get yourself and wrap your head around that question much better at that point. What approach I used was, हम 3 दोस्त थे, हमने ये डिसाइड किया था कि वी विल डू आंसर राइटिंग एवरी डे. हम रोज 5 सवाल करते थे. जनरली क्या होता है, अगर अपन अकेला चालू करते हैं कोई चीज, तो एक दिन अपना मोटिवेशन रहता है, दूसरे दिन मोटिवेशन डाउन, तीसरे दिन फिर कैसे तो कैसे खुद को बढ़ाते हैं कि नहीं यार अपने को करना, फिर करते हैं और फिर डाउन. तो वो कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैंने ग्रुप हमारा जो था 3 लोगों का, उन्होंने रोज टाइम बाउंड मैनर में, जैसे 7.5 मिनट में एक आंसर लिखना है. कैसे भले क्वेश्चन के बारे में कुछ पता हो नहीं पता हो, अपने को लिखना है, क्योंकि फाइनली मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं जिनके बारे में अपने को हवा ही नहीं होती है. थ्रू प्रैक्टिस डेवलप अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर मॉडल आंसर. मॉडल आंसर आपका खुद का होगा. When you see the question, the first thing which you will do is read the question and then reread the question. The next step is to read the keyword. Every question will have a keyword written. For example, enumerate, elucidate, analyze, critically analyze, explain, describe. First of all, read the question very properly. Identify what he is trying to ask, and then ensure that all the parts that he's expecting from you, they are properly covered. Keep a little diary or a note on your phone only, which is handy, जिसमें सारे important facts, figures रख लो. मेंस के टाइम पे बहुत काम आएंगे. And trust me, answer looks so impressive when you start with a very good fact. Just have important definitions of each of the important keywords that UPSC tend to ask. It will really help you a lot. फिर बात आती है बॉडी की, जो स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. वहां पर कोई फ्लारी लैंग्वेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डोंट यूज जार्गन्स, डोंट यूज वेरी हाई फाई वर्ड्स, टू द पॉइंट. डिमांड जो क्वेश्चन की है वो करो. कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस है तो टेबल बना दी, दिस वर्सेस दिस. कुछ प्रो एंड कॉन्स पूछे तो प्रो के 5 पॉइंट्स, कॉन्स के 5 पॉइंट्स. कुछ पॉलिसी एनालिसिस पूछा है, इंट्रो दे दिया, एनालिसिस कर दिया, लूप होल बता दिए, कोई कमिटी की रिकमेंडेशन बता दी. तो वहां पर आपको डायग्राम बनाइए. GS1 और GS3 में तो बहुत डायग्राम बन सकते हैं. जहां इकोनॉमिक्स आया, जहां ज्योग्राफी आया, जल्दी से इंडिया का मैप बनाया और उसमें दिखा दिया, है ना. रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यू डोंट हैव टू राइट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव, लुक्स एज इफ द कैंडिडेट इज सो एक्सपीरियंस्ड. डायग्राम्स और मेक अ सर्कल, मेक एरोस, पॉइंट्स कवर हो जाते हैं. मेरी नॉलेज जो है, आई कैन गारंटी यू, जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, आधे लोगों की मेरे से नॉलेज ज़्यादा होगी, मेरे से ज़्यादा नॉलेज उनकी होगी, गारंटीड.
मेरी प्रिपरेशन कितनी 1.5 ईयर की रही. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सोशल साइंसेज में, राइट? और मैं इतने ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ता भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, है ना. सो वो क्यों है कारण कि आई वॉज एबल टू स्कोर मोर? बिकॉज आई न्यू हाउ टू प्रेजेंट माई आंसर. You have to work on the presentation part as well. उतना ही जितना हम स्टडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं. So answer writing and limited sources is something again that's going to really hold you in good stead in the mains. आप पहले दिन मेरा आंसर लिखते देखते तो बोलते बॉस अगला अटेम्प्ट पे आना, इस बार नहीं हो पाएगा. बट कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने बाद ही आई फेल्ट कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. 1 महीने बाद ही अगर आप 1 महीने कंसिस्टेंटली रोज 5 आंसर लिख लो, डोंट वरी कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मेरा या मुझे इस टॉपिक के बारे में इनफ पता नहीं है. बिकॉज जनरल स्टडी ऐसी चीज है, सबको कुछ ना कुछ पता होता है. ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली बैंक हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे. तो ट्राई करिए वो इंस्टिंक्ट लाने का कि कभी भी किसी भी समय आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उस पर एटलीस्ट एक डिसेंट आंसर लिख सकते हैं.